داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 26 کرک میں صلیبی سلطان ایوبی پر جوابی وار کرنے پر غور کر رہے تھے۔ ان کی مرکزی کمان نے قاصدوں کے ذریعے اپنی بکھری ہوئی فوج کو احکام بھیج دیے کہ مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نکلنے کی ترکیبیں کریں تاکہ جوابی حملہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بچ جائے۔ ان احکام کے ساتھ ہی انہوں نے 40 جابازوں کا ایک گروہ تیار کر لیا جسے مظلوم مسلمانوں کے بیروب میں شوبک میں داخل ہونا اور لڑکیوں کو وہاں سے نکالنا تھا۔ صلیبی حکمرانوں نے اس خیال سے کہ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر ہے وہاں اپنے تخریب کاروں میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ وہ سوڈانیوں اور فاطمیوں کو جلدی متحد کر کے قاہرہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ شوبک اور قرق کے درمیانی علاقے میں بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ سارا علاقہ ہموار ریگستان نہیں تھا۔ کئی جگہوں پر مٹی اور ریتیلی سلوں کے ٹیلے تھے اور کہیں ریت کی گول ٹیکریاں تھیں جن میں کوئی داخل ہو جائے تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ ایسے علاقے میں صلیبی بھی مر رہے تھے اور سلطان ایوبی کے مجاہدین بھی، اور وہاں شوبک کے وہ عیسائی بھی مر رہے تھے جو مسلمانوں کے ڈر سے شہر سے قرق کے سمت بھاگ اٹھے تھے۔ فضا میں گدھوں کے گول اڑ رہے تھے، ان کے پیٹ انسانی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ صحرائی درندے لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے اور مارکہ آرائی کا یہ عالم تھا کہ جیسے افق سے افق تک انسان ایک دوسرے کا کشت اور خون کر رہے ہوں۔ اسی وسیع ریگزار میں کہیں کہیں نخلستان بھی تھے جہاں پانی مل جاتا تھا۔ تھکے ہارے انسان، زخمی انسان اور پیاس کے مارے ہوئے انسان وہاں جا کر گرتے تھے۔ اماد شامی سلطان ایوبی کی فوج کی ایک چھوٹے سے دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ شامی باشندہ تھا، اسی لیے اپنے نام اماد شامی بتایا کرتا تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جو جذبہ ہر مسلمان سپاہی کے دل میں تھا وہ اماد شامی میں بھی تھا، لیکن اس کے جذبے میں انتقام کا قہر اور غضب زیادہ تھا۔ اس کے متعلق سب جانتے تھے کہ وہ یتیم ہے اور اس کا سگا عزیز رشتہ دار کوئی نہیں، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ یتیم ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مرا نہیں تھا۔ وہ 13-14 سال کی عمر میں گھر سے بھاگا تھا۔ اس وقت اس کا گھر شوبک میں تھا اور اسے اچھی طرح یاد بھی تھا کہ اس کے بچپن میں شوبک پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کا کشت و خون شروع کر دیا تھا۔ اس کا بچپن صلیبیوں کی دہشت میں گزرا تھا۔ اس نے مسلمان جنگی قیدی بھی دیکھے جنہیں مار مار کر لایا جا رہا تھا، اور اس کے سامنے 2 قیدیوں کے سر کاٹ دیے گئے تھے کیونکہ وہ زخمیوں کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے۔ اس نے مسلمان گھروں سے لڑکیوں اغوا ہوتے دیکھی تھیں اور اس نے مسلمانوں کو بیگار میں جاتے بھی دیکھا تھا۔ شوبک کے مسلمان کہا کرتے تھے جب شہر میں عیسائی مسلمانوں کو بلا وجہ پکڑ پکڑ کر کیمپ میں لے جانا شروع کر دیں اور ان کے گھروں پر حملے کرنے لگیں تو سمجھ لیں کہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کہیں شکست ہوئی ہے۔ اماد شامی کا گھر بھی محفوظ نہ رہا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کی عمر 7-8 سال تھی۔ اسے وہ بہن یاد تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور گڑیا سی بچی تھی۔ گھر میں اس کا باپ تھا، ماں تھی اور ایک بڑا بھائی تھا۔ ایک روز اماد کی گڑیا سی بہن باہر نکل گئی اور لاپتہ ہو گئی۔ باپ نے تلاش کی مگر کہیں نہ ملی۔ ایک مسلمان پڑوسی نے اسے بتایا کہ اسے عیسائی اٹھا لے گئے ہیں۔ باپ شہر کے حاکم کے پاس فریاد لے کر گیا۔ جو ہی اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے، حاکم اس پر برس پڑا اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ حکمران قوم پر اتنا گھٹیا الزام تھوپ رہا ہے۔ گھر آ کر باپ نے اماد کے بڑے بھائی نے عیسائیوں کے خلاف شور شرابہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے ان کے گھر حملہ ہوا۔ اماد نے اپنی ماں اور بڑے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا اور باہر بھاگ گیا اور ایک مسلمان کے گھر جا چھپا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گیا کیونکہ وہ مسلمانوں نے اسے اس ڈر سے اسے باہر نہ نکلنے دیا کہ عیسائی اسے بھی قتل کر دیں گے۔ تھوڑے دنوں بعد اس مسلمان نے اسے ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا جو اسے چوری چھپے شہر سے باہر لے گیا۔ صبح کے وقت وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ بہت دنوں کی مسافت کے بعد وہ شام پہنچا۔ وہاں اسے ایک امیر کبیر تاجر کے گھر نوکری مل گئی۔ اب اس کی یہی زندگی تھی کہ نوکری کرے اور زندہ رہے۔ وہ ذہنی طور پر بالغ اور بیدار ہو گیا۔ یہ انتقام کا جذبہ تھا۔ اسی جذبے کے زیر اثر اسے فوجی اچھے لگتے تھے۔ اس نے تاجر کی نوکری چھوڑ کر کسی فوجی حاکم کے گھر میں نوکری کر لی۔ اماد نے اسے بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے اور یہ بھی بتایا کہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے۔ اس حاکم نے اس کی پرورش کی اور 16 سال کی عمر میں اسے شام کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وہ انتقام کے لیے بےتاب تھا۔ اسے 3-4 معرکوں میں شریک ہونے کا موقع ملا جن میں اس کے جوہر سامنے آ گئے۔ 11-12 سال بعد اسے اس فوج کے ساتھ اسے مصر روانہ کر دیا گیا جو نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ 2 سال مصر میں گزار گئے۔ پھر خدا نے
اس کی یہ مراد بھی پوری کی کہ وہ شبک پر حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ گیا، لیکن اسے اس فوج میں رکھا گیا جسے ریگزار میں صلیبیوں کی فوج پر حملہ کرنے تھے۔ وہاں وہ صلیبیوں کے لیے قہر بنا ہوا تھا۔ اس کا چھاپا مار سوار دستہ مشہور ہو گیا تھا۔ عماد شامی اپنے سواروں کے ساتھ لیے سیرا میں صلیبیوں کی مشق لیتا پھرتا اور بھیڑیوں اور چیتوں کی طرح ان پر جھپٹتا تھا، مگر اس کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ سرد نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک ماہ بعد اس کے ایک دستے میں کل 4 سوار رہ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے تھے۔ ایک رات اس نے ان 4 سواروں سے صلیبیوں کی کم و بیش 50 افراد کے دستے پر حملہ کر دیا۔ وہ سارا دن چھپ چھپ کر ان کا پیچھا کرتا رہا تھا۔ دن کے وقت 4 سپاہیوں کے 50 سپاہیوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے تعاقب میں وہ بہت دور نکل گیا۔ رات کو صلیبی رک گئے اور انہوں نے پڑاؤ کیا، لیکن بہت سے سنتری بیدار رکھے۔ عماد نے آدھی رات کے وقت گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور سوئے ہوئے صلیبیوں کے درمیان سے اس طرح گزرا کہ برچی سے دائیں بائیں وار کرتا گیا۔ اس کے چہرے جانبازوں کا بھی یہی اندازہ تھا۔ انہوں نے جو ہلی چیز نظر آئی اس پر برچیوں یا تلواروں کے وار کرتے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ وہ کئی سوئے ہوئے صلیبی ان کے گھوڑوں تلے روندے گئے۔ سنتریوں نے تاریکی میں تیر چلائے جو کھتا گئے۔ آگے جا کر عماد نے اپنے جانباز سواروں کو روکا، انہیں وہاں سے آہستہ آہستہ پیچھے لایا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ دشمن بیدار ہو چکا ہے۔ وہ گھوڑ سواروں کو پھر قریب لے گیا اور ایڑ لگانے کا حکم دیا۔ اندھیرے میں اسے سائے سے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ 5 گھوڑے سر پر دوڑتے ان کے درمیان سے گزرے، مگر وہ دشمن پر وار کر کے آگے گئے تو وہاں 5 کے بجائے 3 تھے۔ 2 کو صلیبی تیر اندازوں نے گرا لیا تھا۔ عماد کا خون اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ اس نے اپنے مجاہدوں سے کہا ابھی انتقام لیں گے۔ یہ اس کی حماقت تھی۔ اس نے اپنی دونوں مجاہدوں کو موڑا اور صلیبیوں کے قریب آہستہ آہستہ آ کر حملے کا حکم دے دیا۔ اب تو گھوڑے بھی تھک گئے تھے اور دشمن پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عماد اکیلا رہ گیا۔ اب اس کے وہ دشمن میں سے نکلا تو اس کے ساتھ اب 2 ساتھیوں کے بجائے 2 صلیبی تھے جو اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اندھیرے میں اس نے انہیں ان کی للکار سے پہچانا، ورنہ انہیں اپنے ساتھی سمجھ رہا تھا۔ اس کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اس پر تلواروں سے حملہ کیا۔ اس کے پاس لمبی برچی تھی۔ دوڑتے گھوڑوں سے اس نے 2 کو مقابلہ کیا۔ گھوڑا گھما کر آمنے سامنے آ کر مارکا لڑا۔ لڑائی خاصی لمبی ہو گئی اور دور ہٹتے چلے گئے۔ آخر عماد نے دونوں صلیبیوں کو مار لیا اور دونوں گھوڑے شبک بھیجنے کے لیے پکڑ لیے۔ ان کی تلواریں بھی لے لی، مگر اسے خیال نہ رہا کہ کہاں تک جا پہنچا ہے۔ اس نے گھوڑے کو اور اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے ایک جگہ قیام کیا، لیکن وہ سونے سے ڈرتا تھا کیونکہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی وہ دشمن کے نرغے میں آ سکتا تھا۔ اس نے رات جاگتے گزار دی۔ ستارے دیکھ کر اس نے معلوم کر لیا کہ شبک کس طرف اور کرک کس طرف ہے۔ اسے صحرا میں کون سی جگہ جانا ہے جہاں اسے اپنا کوئی دستہ مل جائے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ چل پڑا۔ وہ صحرا میں پلا تھا، بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ تجربہ کار چھاپا مار تھا، خطرے کو دور سے سونگھنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اسے دور دور صلیبی 4-5 کی ٹولیوں میں جاتے نظر آئے۔ اگر اس کے پاس 2 فالتو گھوڑے نہ ہوتے تو کسی ٹولی پر حملہ کر دیتا۔ وہ بستا بستا اپنی راہ چلتا گیا۔ راستے میں اسے کئی جگہ گھوڑے اور اونٹ کے مردار اور صلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں جنہیں گدھ اور لومڑیاں کھا رہی تھیں۔ ان میں اس کے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی ہوں گی۔ وہ چلتا گیا، سورج افق پر چلا گیا۔ آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا جس میں سے راستے کمند چند قدم پر گھومتے تھے۔ یہاں ڈر تھا کہ صلیبیوں کی کوئی ٹولی رات کے لیے قیام کریں گی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا اور یہ ڈر بھی تھا کہ کسی ٹیلے پر کوئی تیر انداز نہ بیٹھا ہو۔ وہ ہر طرف اوپر دیکھتا چلتا گیا۔ آگے راستہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا۔ وہاں سے مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی۔ تیز رفتاری سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایک وسیع کھڈ بنی ہوئی تھی۔ عماد میں سے کوئی 20 قدم دور میلے کچیلے سے چگے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عماد کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ آدمی نہتھا معلوم ہوتا تھا۔ عماد نے اسے للکارا، مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹیلا مشکل قسم کا تھا۔ عماد آگے چلا گیا۔ اس آدمی نے کوشش اور کی، مگر کہیں ہاتھ پاؤں نہ جما سکا۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ ٹیلے سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو پڑ گئی۔ وہ لڑکتا ہوا عماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن پڑا۔ اس کے سر سے چگے کی اوڑھنی والا حصہ اتر گیا۔ عماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک جوان لڑکی تھی اور خوبصورت اتنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عماد گھوڑے سے اترا۔ لڑکی خوف زدہ تھی۔ اس کی رہی سہی قوت بھی خوف نے ختم کر دی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی،
उठी मगर बैठ गई। उम्माद ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने जवाब दिया, पानी पिलाओ। उम्माद ने घोड़े से पानी की छागल खोलकर उसे दे दी। उसने बेताबी से पानी पिया और उसकी आंखें बंद होने लगी। उम्माद ने उसे खाने के लिए कुछ दिया तो उसके पेट में गया तो उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आने लगे। उम्माद ने उससे कहा, मुझसे डरो नहीं, बताओ कौन हो। शुभक से अपने खानदान के साथ चली थी। उसने थकी हारी जबान में कहा, सब मारे गए, अकेली रह गई हूँ। मुसलमानों ने बीच में हमला कर दिया था। मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि तुम कौन हो। उम्माद ने कहा, तुमने जो कुछ कहा झूठ कहा है। झूठ ही सही, उसने खौफजदा लहजे में कहा। मुझ पर रहम करो और मुझे करक तक पहुंचा दो। शुभक तक। उम्माद ने कहा, मैं तुम्हें शुभक ले जा सकता हूँ, करक नहीं। तुम देख रही हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैं रास्ते में ईसाई फौज के हाथों मरना नहीं चाहता। फिर मुझे एक घोड़ा दे दो। लड़की ने कहा, मैं लड़की हूं, अगर रास्ते में किसी के कब्जे में आ गई तो जानते हो मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तुम्हें घोड़ा भी नहीं दे सकता, तुम्हें यहां से अकेले रवाना भी नहीं कर सकता। उम्माद ने कहा, यह मेरा फर्ज है कि तुम्हें अपने साथ शुभक ले जाऊं। वह मुझे किसके हवाले करोगे। अपने हाकिमों के हवाले करूंगा। उम्माद ने कहा और उसे तसल्ली दी, तुम्हारे साथ वो सुलूक नहीं होगा जिसका तुमको डर है। लड़की करक जाने की जिद कर रही थी। उम्माद ने उसे बताया कि उन्हें हुक्म मिला है कि शुबह के किसी ईसाई बाशिंदों को वहां से भागने न दिया जाए। इसके अलावा उसने लड़की को खबरदार किया कि वो करक तक नहीं पहुंच सकेगी। वो क्योंकि गोरी रंगत की खूबसूरत लड़की थी, इसलिए लड़की को ये डर था कि मुसलमान फौजी उसे बेआबरू करेगा। उसने सोचा, क्यों क्यों ना उसके साथ आबरू का सौदा करके उससे कहा जाए कि उसे घोड़े दे दे। लड़की ने अपना रवैया बदल लिया और उम्माद से कहा, मौत, मैं बहुत थकी हूँ, आज रात ही क़याम किया जाए, सुबह शुबह को रवाना हो जाएंगे। उम्माद भी थका हुआ था, घोड़ों को भी यही हाल था। वो लड़की भी हाथ की हालत देख रहा था। उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। उससे पहले लड़की ने उसे गौर से नहीं देखा था। उसने यही देखा था कि बड़ी हुई दाढ़ी वाला मुसलमान फौजी है जो जिस्म की साख और घर से हटे हुए चेहरे से वहशी लगता है। उसे उसे रहम की उम्मीद नहीं थी। अब जबकि उसने कुछ और ही सोच लिया था। उसने उम्माद को गहरी नज़रों से देखा। उस वक्त उम्माद भी उसे गहरी नज़रों से देख रहा था और सोच रहा था कि इस कदर हसीन लड़की का इस इराक में अकेले रह जाना, जहां सलीबी और इस्लामी सिपाही लंबे अरसे से भूखे भेड़ियों की तरह भागते दौड़ते फिर रहे हैं, इसके लिए कितना खतरनाक है। और ये भी हो सकता है कि इस लड़की पर सिपाही या कमांडर आपस में ही लड़ मरे। वो खुद भी रिश्ते नहीं था। उसने लड़की के आंखों में झांका। उस वक्त लड़की उसे देख रही थी। उम्माद ने कोशिश की कि वो लड़की से नजरें फेर ले, मगर लड़की की आंखों ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया था। उसने अपने जिस्म के अंदर कोई ऐसा जज्बा महसूस किया जो उसके लिए अजनबी था। उसने एक बार नजरें झुका ली, मगर आंखें अपने आप ऊपर उठ गईं और बेचैन सा होने लगा। लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आज उम्माद से आहिस्ता से कहा, तुम शायद कुंवारी हो। हाँ, लड़की ने जवाब दिया, जरा भी सोचे बगैर कह दिया, मेरी दुनिया में कोई नहीं रहा। अगर मेरे साथ कोई करक चलो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। उम्माद बेदार सा हो गया। उसने कहा, फिर तुम मुझे कहोगे कि अपना मजहब तब्दील कर लो, जो मैं नहीं कर सकूंगा। तुम सुबह चलकर मेरे साथ शादी करो और मुसलमान हो जाओ। मुझे बहरहाल करक जाना है। लड़की ने कहा, अगर मेरे साथ वहां तक चलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लड़की ने सौदाबाजी शुरू कर दी थी, लेकिन उम्माद कुछ और ही सोच रहा था। ये सोच ऐसी थी जिसे वो समझ भी न सका था। वो बार बार लड़की के चेहरे और उसके रेशमी बालों और आंखों को देखता और सर झुकाकर सोच में खो जाता। लड़की की जैसे वो कोई बात सुन नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद लड़की का चेहरा गहरी शाम की तारीकी में छुप गया। उसने घोड़े के साथ बंधे हुए थैले में खाने की दो तीन चीजें निकाली, लड़की को दी और खुद भी खाई। उसका जिस्म इस कदर निढाल था, जो ही लेटा उसकी आंख लग गई। आधी रात के बहुत देर बाद लड़की ने करवट बदली और उसकी आंख खुल गई। उसने उम्माद को देखा, वो खर्राटे ले रहा था। उसने चंद कदम दूर घोड़े खड़े थे। रात के पिछले पैर का चांद टीलों के ऊपर आ गया था। सेराई चांदनी आईने की तरह शफाफ थी। लड़की ने घोड़े को देखा। उम्माद को इतना होश भी न था कि सोने से पहले घोड़ों की जीन उतार देता। लड़की ने घोड़े तैयार देखे, उम्माद को गहरी नींद सोए देखा और यह भी महसूस किया कि पेट में खुराक और पानी जाने से उसका जिस्म तरोताज़ा हो गया है। तो उसने अपने चुग्गे के अंदर हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर आया तो उसकी इतनी दिलकश उंगलियों ने एक खंजर को मजबूती से पकड़ा था। चांदनी में उसे उम्माद का चेहरा नजर आ रहा था। वो तो बेहोशी की नींद सोया हुआ था। लड़की ने चांदनी में चमकते हुए खंजर को देखा और एक बार फिर उम्माद के चेहरे पर नजर डाली।
उम्माद आयशा से कुछ बड़बड़ाया। वो नींद में बोल रहा था। लड़की यही समझ रही थी कि वो घर वालों को याद कर रहा है। लड़की ने उम्माद के सीने को गौर से देखा और अंदाजा किया कि उसका दिल कहाँ है। वो एक से दूसरा वार नहीं करना चाहती थी। वो वार दिल पर होना चाहिए ताकि उम्माद फौरन मर जाए, वरना वो मरते मरते भी उसे मार डालेगा। लड़की ने खंजर को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े को देखा। उसने दिल ही दिल में पूरा अमल दोहराया। वो खंजर दिल में उतार देगी और भाग कर एक घोड़े पर सवार हो जाएगी और घोड़े को एड़ लगा देगी। वो सिपाही नहीं थी, वरना वो बिना सोचे समझे खंजर मारकर उम्माद को खत्म कर देती। यही वजह थी कि उम्माद मुसलमान है और उसका दुश्मन है, मगर वो बार बार उम्माद के चेहरे पर नजरें गाड़ लेती थी। अब जब उसकी कदर करने के लिए खंजर को मजबूती से पकड़ते थे तो उसका दिल धड़कने लगता था। उम्माद एक बार फिर बड़बड़ाया। अब उसके अल्फाज जरा साफ थे। वो ख्वाब में अपने आप को अपने घर पहुंच गया चुका था। उसने माँ का नाम लिया, बहन को भी याद किया और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जैसे उन्हें कत्ल कर दिया गया हो और उम्माद कातिलों को ढूंढ रहा हो। कोई एहसास या जज्बा लड़की को रोक रहा था। खौफ भी हो सकता था या ये कत्ल ना करने का जज्बा भी हो सकता था। लड़की बेचैन हो गई। उसने इरादा किया कि कत्ल ना करे। आहिस्ता से उठे और घोड़े पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता से खड्ड से निकल जाए। वो उठी और खंजर हाथ में लिए घोड़े की तरफ चल पड़ी, मगर रेत ने उसके पांव जकड़ लिए। उसने रुक कर उम्माद को देखा तो अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि इस मर्द ने इतनी परवाह नहीं की कि उसे एक जवान लड़की तन्हाई में मिल गई है। उसने ये भी ना सोचा कि ये लड़की ईसाई है जो उसे रुस्सोते में कत्ल कर सकती है। और उसने अपने घोड़े की जीन भी नहीं उतारी और उसने अब बर्छी और तलवार भी एहतियात से नहीं रखी। क्यों? क्या उसे मुझ पर भरोसा था? क्या इतनी ही बेहिस है कि मेरी जवानी उसके अंदर कोई जज्बा बेदार ना कर सकी? उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे उस आदमी ने उसे घोड़े से ज्यादा कीमती नहीं समझा। अब आहिस्ता आहिस्ता घोड़े तक पहुंची। घोड़ा हिनहिनाया। लड़की ने घबरा कर उम्माद को देखा। घोड़े की आवाज पर भी उसकी आंख ना खुली। वो तीन घोड़े की ओट में खड़ी एक घोड़े पर सवार होने का इरादा कर रही थी कि उसे अपने अकब से आवाज सुनाई दी। कौन हो? लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। एक आदमी ने मुंह से सीटी बजाई और कहा, हमारी ये किस्मत। वो दो थे। दूसरा हंसा। लड़की जबान से पहचान गई, ये सलीबी हैं। एक ने लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। लड़की ने कहा, मैं सलीबी हूँ। दोनों आदमी हंस पड़े और एक ने कहा, फिर तुम सालिम हमारी हो। आओ जरा ठहरो और मेरी बात सुनो। उसने कहा, मैं शुबक से फरार होकर आई हूँ। मेरा नाम अयोना है। मैं जासूसी के शोबे की हूँ। करक जा रही हूँ। वो देखो, एक मुसलमान सिपाही सोया हुआ है। उसने मुझे पकड़ लिया था। उसे सोता छोड़कर भाग रही हूँ। मेरी मदद करो। एक घोड़े संभालो और मुझे करक पहुंचाओ। उसने उन्हें बर्ची अच्छी तरह समझाया कि वो सलीबी फौज के लिए कितनी कीमती और कारामद लड़की है। एक वैशी ने उसे वैश्यों की तरह बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, जहां कहोगी पहुंचा देंगे। दूसरे ने कहा, एक बेहुदा बात कह दी और दोनों एक दूसरे की एक तरफ को ढकेलने लगे। वो सलीबी फौज के प्यादा सिपाही थे जो मुसलमान छापामारों से भागते फिर रहे थे। रात को छुप छुप कर आराम करना चाहते थे। ऐसी खूबसूरत लड़की ने उन्हें हैवान बना दिया। लड़की ने जब देखा कि उन्हें सलीब का भी कोई ख्याल नहीं था तो उसने इस उम्मीद पर बुलंद आवाज से बोलना शुरू कर दिया। उम्माद जाग उठा। उसे सिपाहियों ने घसीटना शुरू कर दिया। अचानक एक ने घबराई हुई आवाज में अपने साथी का नाम लेकर कहा, बचो। मगर उसके बचने से पहले ही उम्माद की बर्छी उसके पीठ में उतर चुकी थी। दूसरे ने तलवार सूंघ ली। इस वक्त लड़की ने देखा कि उसके हाथ में खंजर है। उसने खंजर सलीबी सिपाही के पहलू में घोंप दिया। एक के बाद दीगरे दो और वार किए और चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम सलीब के नाम पर गलत दाग हो। जब दोनों सलीबी ठंड हो गए तो लड़की बेकाबू होकर रोने लगी। उम्माद ने उसे बहलाया और कहा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हो सकता है ज्यादा सिपाही इधर आ निकले। हम अभी शुबक को रवाना हो जाते हैं। उसने लड़की से पूछा, उन्होंने तुम्हें जगाया था? नहीं। लड़की ने जवाब दिया, मैं जाग रही थी और घोड़े के पास खड़ी थी। वहां क्यों? घोड़े पर सवार होकर भागने के लिए। लड़की ने एतराफ करते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी। तुमने खंजर कहाँ से लिया? मेरे पास था। लड़की ने जवाब दिया, मैं पहले ही हाथ में ले रखा था। पहले ही हाथ में क्यों ले रखा था? उम्माद ने पूछा। शायद इसलिए कि मैं जाग उठूं कि तो तुम मुझे कत्ल कर दो। लड़की ने जवाब ना दिया। उम्माद को देखती रही। कुछ देर बाद बोली, मैं तुम्हें कत्ल करके भागना चाहती थी, पेशतर इसके कि तुम मुझे कत्ल करो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये खंजर तुम्हें कत्ल करने के लिए खोला था, लेकिन हाथ उठा नहीं था। मैं नहीं बता सकती कि मैंने ये खंजर तुम्हारे दिल में क्यों नहीं उतारा। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में थी। मैं बुज़दिल नहीं, फिर भी मुझे
फिर भी मैं तुम्हें कत्ल न कर सकी। मैं कोई वजह बयान नहीं कर सकती थी। शायद तुम कुछ बता सको। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उम्माद ने कहा, तुम्हारे हाथ मेरे खुदा ने रोका था और तुम्हारी इज्जत खुदा ने बचाई है। मेरा वजूद तो एक बहाना है और एक सबक था। किसी घोड़े पर सवार हो जाओ और चलो। लड़की ने खंजर उम्माद की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरा खंजर अपने पास रख लो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। तुम मेरी तलवार भी अपने पास रख लो। उम्माद ने कहा, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकोगी। ये मजाक नहीं था। दोनों पर संजीदगी तारी थी। वो घोड़ों पर सवार हुए और तीसरा घोड़ा साथ लेकर चल पड़े। सूरज निकलने तक वो उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां कोई सलीबी सिपाही नजर नहीं आता था। उम्माद की अपनी फौज के चंद सिपाही उसे नजर आए, जिनके साथ उसने कुछ बातें की और चलते गए। अप्रैल का सूरज बहुत गर्म था। वो मुंह और सर लपेटे हुए चलते गए। दूर से रेत पानी के समंदर की तरह चमकती हुई नजर आती थी और बाएं सिम्त रेतीले सिलों के पहाड़ियां नजर आ रही थीं। सफर के दौरान आपस में कोई बात न कर सके। गर्मी के अलावा उन लाशों ने भी उन पर खामोशी तारी कर रखी थी जो उन्हें इधर उधर बिखरी हुई नजर आ रही थी। कोई एक भी लाश सालिम नहीं थी। गिद्धों और दरिंदों ने उनके आज़ा अलग कर दिए थे। बास लाशों की सिर्फ हड्डियां और खोपड़ियां रह गई थी। उम्माद ने लड़की से कहा, ये तुम्हारी कौम के सिपाही हैं। उन बादशाहों की ख्वाहिशों का शिकार हो गए हैं जो इस्लामी सल्तनत को ख़त्म करके बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली और न जाने कहाँ से आए हैं। लड़की खामोश रही और बार बार उम्माद को देखती थी और आ भरकर सर झुका लेती थी। उम्माद ने सिलों की पहाड़ियों को का रुख कर लिया। उसे मालूम था कि वहाँ पानी ज़रूर होगा और साया भी। सूरज उनके पीछे जाने लगा तो पहाड़ियों में पहुंच गए। तलाश के बाद उन्हें हरी झाड़ियां और घास नजर आ गईं। एक जगह से पहाड़ी का दामन फटा हुआ था, वहां पानी था। वहां घोड़ों से उतरे, पहले खुद पानी पिया और फिर घोड़ों को पानी 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 पीने के लिए छोड़ दिया और साए में बैठ गए। तुम कौन हो? लड़की ने उससे पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुसलमान हूँ, उम्माद ने जवाब दिया। मेरा नाम उम्माद है और मैं शामी हूँ। रात ख्वाब में तुम किसे याद कर रहे थे? याद नहीं कर रहा था, उम्माद ने कहा। मैं शायद ख्वाब में बोल रहा था। मेरे साथी मुझे बताया करते हैं कि मैं ख्वाब में बोला करता हूँ। तुम्हारी माँ है, बहन है? लड़की ने पूछा और कहा, तुम शायद उन्हें याद कर रहे थे। ठीक अभी, उम्माद ने आ भरकर कहा। अब उन्हें ख्वाब में देखा करता हूँ। लड़की ने उसे सारी बातें पूछने की कोशिश की लेकिन उम्माद ने कुछ और नहीं बताया। उसने लड़की से कहा, तुमने अपने मुतालिक झूठ बोला था। मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे मुतालिक हाकिम के हवाले करके वापस आ जाऊंगा। अगर सच बोल सको तो अपने मुतालिक कुछ बता दो, लेकिन यह ना कहना कि तुम सलीबी लड़कियों में से नहीं हो जो हमारे मुल्क में जासूसी के लिए आती हैं। तुम ठीक कहते हो, लड़की ने कहा। मैं जासूस लड़की हूँ। मेरा नाम अयोना है। तुम्हारे माँ बाप को मालूम है कि तुम्हारा काम किस किस्म का है? उम्माद ने पूछा। मेरे माँ बाप नहीं, अयोना ने जवाब दिया। मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी। मेरा महकमा मेरी माँ और उस महकमे का हाकिम हरमन मेरा बाप है। उसने ये बात यहीं पर ख़त्म कर दी और कहा, मेरी एक साथी लड़की ने एक मुसलमान सिपाही लड़के को बचाने के लिए जहर पी लिया था। मैं उस वक्त बहुत हैरान हुई थी कि कोई सलीबी लड़की एक मुसलमान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकती है। मैं आज महसूस कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। पता चला था कि मुसलमान सिपाही ने भी तुम्हारी तरह उस लड़की को डाकुओं से लड़कर बचाया, खुद जख्मी हुआ और लड़की को शुबक तक पहुंचा दिया था। तुम्हारी तरह उसने भी ध्यान नहीं दिया कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है। लोजीना बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। मैंने अपना फ़र्ज अदा किया है। उम्माद ने कहा, हम लोग हुक्म के पाबंद होते हैं। शायद जज्बात का असर है कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैंने पहले भी तुम्हें देखा होगा। उम्माद ने कहा, तुम मिस्र गई होगी, वहाँ देखा होगा। मैं मिस्र जरूर गई हूँ, लेकिन लड़की ने कहा, तुम्हें नहीं देखा था। उसने मुस्कुरा कर पूछा, मेरे मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम्हारी खूबसूरती से मैं इनकार नहीं किया। उम्माद ने संजीदगी से कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुमने सवाल क्यों किया। तुम ज़रूर हैरान होगी कि मैंने तुम्हारे साथ वो सलूक क्यों ना किया जो तुम्हारे सलेबी के दो सिपाहियों ने तुम्हारे साथ करना चाहा था। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में ये खौफ अभी तक मौजूद हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ और तुम्हें शोबक ले जाकर ख़राब करूँगा, या तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर लूँगा, या तुम्हें बेच डालूँगा। मैं तुम्हारा ये खौफ दूर करना ज़रूरी समझता हूँ। लड़की मेरे मज़हब की हो या किसी दूसरे मज़हब की, मैं किसी लड़की को बुरी नज़र से देख नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मैं जब 13-14 साल का था तो मेरी एक छोटी सी बहन अगवा हो गई थी। उसकी उम्र 6-7 साल थी। 16 साल गुजर गए हैं। उसे शुबा के ईसाई उठा ले गए थे।
मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गई है, मगर जिंदा है तो किसी अमीर के हरम में होगी या तुम्हारी तरह जासूसी करते फिर रही होगी। मैं जिस लड़की को देखता हूँ उसे अपनी बहन समझ लेता हूँ। उसे बुरी नज़र से इसलिए नहीं देखता कि वो मेरी गुमशुदा बहन ना हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए शुभक ले जा रहा हूँ कि महफूज रहो। मैं जानता था कि सहरा में अकेले जाने और पैदल चलने से तुम्हारा क्या हशर होता। तुम किसी के हाथ चढ़ जाती तो तुम्हारा हाल वही होता जो तुम्हारे अपने सलीबी भाई करने लगे थे। मुझे अपनी खूबसूरती का एहसास ना दिलाओ, मैं इस एहसास के लिहाज से मुर्दा हूँ। मुझे लज्जत और सहराओं ने सलीबियों के ताक़ुब में घोड़ा दौड़ाते और उनका खून बहाते मिलती है। लड़की उसे अजीब सी नज़रें से देख रही थी। उसकी आंखों में प्यास का तासुर था। उसके साथ ही ऐसी बातें किसी ने नहीं की थी। उसे बेहयाई और अय्यारी के सबक दिए गए थे और उसकी बातें और चाल ढाल में बड़ी मेहनत से जिनसी कशिश पैदा की गई थी। उसे एक बड़ी ही खूबसूरत ट्रैप बनाया गया था। उस पर हुसन और शराब का नशा तारी किया गया था। उसे इस्मत के मोती से महरूम रखा गया था और वो इस ट्रेनिंग के बाद अपनी साथी लड़कियों की तरह अपने आप को मर्दों के दिलों पर राज करने वाली शहजादी समझने लगी थी। उसे यह भी याद नहीं रहा था कि उसका घर कहाँ है और उसके माँ बाप कैसे थे। उम्माद की जज्बाती बातों ने उसकी ज़ात में एक औरत के जज्बात पैदा कर दिए। वो गहरी सोच में के आलम में खो गई। उम्माद से जैसे वो बेताल्लुक हो गई हो। उसने गहरी सोच के आलम में कहा, एक डरावने ख्वाब की तरह याद आता है कि मुझे एक घर से उठाया गया था। मुझे याद नहीं आ रहा है उस वक्त मेरी उम्र क्या थी। उसने मुझे बालों में दोनों हाथ फेरे और बालों को दोनों मुट्ठियों में लेकर झिंझोड़ा, जैसे पुरानी यादों को बेदार करने की कोशिश कर रही हो। उसने उकता कर कहा, कुछ याद नहीं आता। मेरा माजी शराब और ऐशो इशरत और हसीन अय्यारियों में गुम हो गया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे वालिदैन कौन थे और कैसे थे। मुझे कभी माँ बाप की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। मेरे अंदर जज्बात ही थे ही नहीं। मुझे मालूम ही नहीं कि मैं मर्द बाप और भाई भी हो सकता है। मर्द मुझे अपनी तफरीह के इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं, लेकिन मैं मर्दों के इस्तेमाल क्या करती हूँ। जिस पर मेरी खूबसूरती और मेरी जवानी का नशा तारी ना हो, उसे मैं हशीश और शराब से अपना गुलाम बना लिया करती हूँ। मगर अब तुमने जो बातें की हैं उन्होंने मुझ में हिस्स बेदार कर दी है। जो माँ बाप बहन और भाई का प्यार मांगती है, उसकी बेचैनी बढ़ती गई और रो रुक कर बोलती रही, फिर बिल्कुल ही चुप हो गई। कभी उम्माद की टिकटकी बांध कर देखने लगती और कभी अपने सर पर हाथ रखकर अपने बाल मुट्ठी में लेकर झिंझोड़ने लगती। वो दरअसल गुमशुदगी माजी और हाल के दरमियान भटक गई थी। उम्माद ने जब उससे कहा कि उठो चलो, तो भोले भाले मासूम बच्चे की तरह उसके साथ चल पड़ी। उसने घोड़े उन्हें पहाड़ी इलाकों में बहुत दूर ले गए तो भी उम्माद को देख रही थी। सिर्फ एक बार उसने हंसकर कहा, मर्द की बातें और वादों पर कौन कभी एतबार नहीं किया। मैं समझ नहीं सकती थी कि मैं क्यों महसूस कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। उम्माद ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। नेक्स्ट पार्ट कल इंशाअल्लाह।